Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Devashri. I'm working as an assistant professor. If you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. So what are the benefits of the Unacademy Plus are daily live classes, structured courses as per the CSIR syllabus, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. So if we move to the price list, if you join for 1 month, the price will be around 1890. For 3 months it is to 4725. For 6 months it is 8505. For 12 months it is 10,395, and for 24 months it is 15,120. If you use my referral code DEBA1, you will be getting a 10% off on all this. So to get the maximum benefit at the minimum price, you can use my referral code and you can be a part of the Unacademy family. So let's move to our topic. So today's we have already discussed about the part 1. So in this class, we will be discussing about the part 2, right? So let's start with the chemical synapse. So if we talk about the synapse, what is synapse? Synapse is also known as, if you ask me, synapse is also known as interneuronal junction. Interneuronal junction. So it is the connection between the two neurons. It is the what? Connection between the two neurons where it transfer impulses from one neuron to another. So this is, if you see the diagram, this is one neuron and this is another neuron, right? So the transmission of impulse is taking place between the one neuron to another neuron. So how it taking place, we will be dealing with that, right? Okay, so this is a action potential. Action potential arrive at axon terminal. So whenever there is a stimuli, there will be a development of action potential due to what? Due to the sodium channels, channels opening, right? So whenever the action potential reaches to the axon terminal, the voltage gated calcium channels opens up, right? So voltage gated calcium channels opens up. So whenever the impulse reaches, whenever you can say action potential reaches the axon terminal, there is a opening of calcium channels, right? So what will happen? Calcium enter the cell. Calcium signals to vesicles. Vesicles move to the membrane. Docked vesicles release neurotransmitter by exocytosis. Neurotransmitter diffuse across the synaptic cleft and binds to the receptor. So what is happening? See, this is a first neuron. This is the end point of neuron, right? ये क्या है आपका? ये आपका जो न्यूरॉन है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूरॉन को ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे ये होता है आपका ऐसा न्यूरॉन होता है, राइट? और यहाँ पे होता है आपका सिनेप्स. तो ये जो आपका पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये इसका टर्मिनल पार्ट है, राइट? टर्मिनल वाला पार्ट है. यहाँ से आपका कनेक्शन होता है दूसरे न्यूरॉन के लिए, राइट? तो हम अभी यहाँ पे कैसे क्या होता है, वी विल सी दिस. तो क्या होता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल क्या है? कल हमने देखा था क्या है एक्शन पोटेंशियल. नॉर्मली जो सेल होता है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है, दैट इज -70 मिलीवॉल्ट, राइट? लेकिन जैसे ही क्या होता है आपका, जैसे ही कोई स्टिमुलाई आता है तो क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और जो पोटेंशियल होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं आपका +20 में, राइट? उसको हम बोलते हैं क्या? एक्शन पोटेंशियल, राइट? तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल मतलब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो इनर साइड पॉजिटिव हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम. अब जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएंगे और ये एक्सॉन टर्मिनल में पहुंच जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल, तो इमीडिएटली क्या होगा? कैल्शियम चैनल्स का ओपन हो जाता है. कैल्शियम चैनल्स कैसे ओपन होता है? ये एक वोल्टेज गेटेड चैनल है. देखिए, हमेशा चैनल्स दो तरह के होते हैं, या तो लिगेंड गेटेड होता है या तो होता है वोल्टेज गेटेड. जो शुरुआत होता है वो लिगेंड गेटेड से होता है. कोई भी आता है लिगेंड, वो बाइंड करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, राइट?
एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो आपका बाकी जनरेट होते हैं आयन चैनल्स ओपन होते हैं, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड, राइट। तो कैल्शियम चैनल क्या है, वोल्टेज गेटेड, क्योंकि ऑलरेडी लिगेंड आके बाइंड हुआ तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब क्या होगा, वोल्टेज गेटेड के थ्रू कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, राइट। तो अब कैल्शियम चैनल्स जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो सेल्स के इंटीरियर में क्या आएगा, कैल्शियम, राइट। कैल्शियम जैसे ही अंदर आता है वो क्या करवाता है, वो सिग्नल्स देता है वेसिकल्स को। ये देखो, ये सब सिनेप्टिक वेसिकल्स है। इनमें क्या स्टोर्ड है, इनमें स्टोर्ड है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने यहाँ पे लिखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो ये क्या है, ये है न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही कैल्शियम इनसाइड आते हैं, ये वेसिकल्स को सिग्नल देता है कि तुम फ्यूज हो जाओ मेम्ब्रेन के साथ, राइट। और जैसे ये वेसिकल्स फ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका वेसिकल्स किसके साथ फ्यूज करते हैं, मेम्ब्रेन के साथ। और फ्यूजन के बाद वो रिलीज कर जाते हैं आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये जाके आपके दूसरा न्यूरन, ये हो गया सेकेंड न्यूरन, राइट। सेकेंड न्यूरन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये देखिए, ये हो गया आपका कुछ रिसेप्टर्स। किसका रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर्स, राइट। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो जाके बाइंड कर जाते हैं आपका रिसेप्टर्स के साथ, राइट। और यहां से आपकी होती है क्या, इंपल्स का ट्रांसमिशन। क्लियर हुआ क्या होता है, मैं एक बार फिर से डिफाइन कर रही हूँ होता क्या है। जैसे ही कोई स्टिमुला, पहले तो सेल अपना रेस्टिंग पोटेंशियल में रहता है जो कि आपका -70 मिलीवोल्ट है। जैसे ही कोई स्टिमुला बाहर से आते हैं तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही आपका सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, क्या होता है, आपका रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज हो जाते हैं एक्शन पोटेंशियल में, राइट। और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल पूरा न्यूरॉन ट्रेवल करके जब वो एक्सॉन टर्मिनल्स में पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स का ओपनिंग होता है, राइट। सबसे पहला जो चैनल होगा वोल्टेज गेटेड, वो कैल्शियम चैनल्स का ओपनिंग होगा, राइट। जैसे ही कैल्शियम चैनल का ओपनिंग होगा, कैल्शियम चैनल इंटीरियर में आएगा, राइट। कैल्शियम चैनल क्या करवाएगा, आपका वेसिकल्स होते हैं, मतलब सेल के न्यूरॉन के अंदर, एक्सॉन के अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही आपका कैल्शियम आता है, वो वेसिकल्स को सिग्नल देते हैं कि आप लोग फ्यूज हो जाओ और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दो, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो सीधा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, ये किसके बीच हुआ है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच। इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, ये आप देख सकते हो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड कर जाता है किसके साथ, रिसेप्टर्स के साथ। कौन सा रिसेप्टर्स, पोस्ट सिनेप्टिक, पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट न्यूरॉन, यहाँ पे जो सिनेप्स है, यहाँ पे आके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है, राइट। और आपका पूरा इंपल्स ट्रेवल करता है। क्लियर हुआ बात, केमिकल सिनेप्स कैसे होता है। सबसे पहली बात, एक्शन पोटेंशियल होना जरूरी है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होगा, आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद कैल्शियम अंदर आएगा, वो सिग्नल करेगा वेसिकल्स को कि तुम फ्यूज कर जाओ और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दो, राइट। उसी तरह से वो फ्यूज हो जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर को भी ये क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये जाके बाइंड करेगा आपका दूसरा वाला न्यूरॉन के रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर्स पे जाके ये बाइंड करेंगे, राइट। जैसे ये बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर्स में, उसी टाइम में आपका क्या होगा, इंपल्स का ट्रैवलिंग होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, राइट। Okay, so that's all about chemical synapse. Let's move to the next slide. ये है कुछ ड्रग्स। कोई अगर ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है तो ड्रग्स का भी इफेक्ट होता है आपका सिनेप्स में, राइट। तो वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल, बट वी विल सी हाउ अ ड्रग will affect the synapse, right? We will see that.
So if you see a drug action, so action क्या करता है, ये mimic करता है neurotransmitter का. There are so many drugs, right? Some can mimic as a neurotransmitter. So when the drug mimic as a neurotransmitter, what will happen? It will switch on the synapse. अगर कोई भी drug neurotransmitter की mimicry करता है तो वो उससे क्या होगा, उससे इफेक्ट क्या होगा, या फिर इम्पैक्ट क्या होगा, जो आपका सिनेप्स है वो स्विच ऑन हो जाता है. क्लियर? क्या अगर कोई भी, ये लो एक ड्रग है, राइट, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर की तरह मिमिक्री कर रहा है. हमने अभी क्या देखा, एसिटाइल कोलाइन, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जाके दूसरे वाले न्यूरॉन से बाइंड करके सिग्नल को ट्रांसफर, इंपल्स को ट्रांसफर करता है. सिमिलरली अगर कोई भी ड्रग एसिटाइल कोलाइन या फिर कुछ भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है तो इससे इफेक्ट क्या होगा, ओवरऑल सिनेप्स में, सिनेप्स का ऑन होता है. नेक्स्ट, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर. ये स्टिमुलेट करता है रिलीज किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का, जो कि स्विच ऑन करवाता है सिनेप्स को. ओपन अ न्यूरो रिसेप्टर चैनल्स. ये क्या करते हैं, न्यूरो रिसेप्टर्स को चैनल्स ओपन करवाते हैं, जिसके कारण भी सिनेप्स आपका ऑन रहता है. ब्लॉक का न्यूरो रिसेप्टर चैनल ब्लॉक भी करवाते हैं, इससे ऑफ होता है. इनहिबिट द ब्रेकडाउन एंजाइम. एंजाइम, जो भी एंजाइम्स काम करते हैं न्यूरॉन से रिलेटेड, उन एंजाइम्स के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करते हैं. तो इससे भी क्या होता है, स्विच ऑन अ सिनेप्स, राइट. अगर मैं बात करूं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को, और इससे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होता है, जब आपका सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, राइट. अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप भी बंद हो गया तो कहां से होगा, राइट. तो इसीलिए ये स्टॉप एक्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट, ब्लॉक द सोडियम और पोटेशियम चैनल्स. ये सोडियम और पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करवाते हैं, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल का ब्लॉकिंग होता है, राइट. क्लियर हुआ कैसे ड्रग्स इफेक्ट करते हैं सिनेप्स को? यस, ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हम डीलिंग करेंगे किसका, यहाँ पे हम डीलिंग करेंगे सिंथेसिस एंड रिसाइकलिंग ऑफ एसिटाइल कोलाइन. एसिटाइल कोलाइन क्या है, हमें पता है, इट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर. क्या है ये आपका, ये है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर. तो ये एक्साइटेटरी भी होता है, इनहिबिटरी भी होता है. ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी दोनों का काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट. ओके, तो ये हो गया सिनेप्सिस. ये तो डायग्राम आपको पता है, ये एक न्यूरॉन का पार्ट है, ये दूसरे न्यूरॉन का पार्ट है, राइट. और बीच में जो पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट. अब हम देखेंगे एसिटाइल कोलाइन का क्या सीन है, कैसे सिंथेसाइज होता है. अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ, एसिटाइल कोलाइन इज सिंथेसाइज इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो एसिटाइल कोलाइन का सिंथेसिस कहाँ होता है, इसका सिंथेसिस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. ये आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. तो एसिटाइल कोलाइन का सिंथेसिस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. कोलाइन एसिटाइल transferase catalyzes the conversion of choline and acetyl coenzyme A into acetylcholine. देखो ध्यान से देखना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में किसका सिंथेसिस होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस होता है, राइट. एक एंजाइम आता है आपका जिसका नाम है कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज. कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज, राइट. ये एंजाइम करता क्या है, कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज. ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए को कोलिन के साथ बोन फॉर्म करवाता है, या फिर आप बोल सकते हो एसिटाइल कोएंजाइम ए को कोलिन के साथ जो लिंक करवाते हैं वो एंजाइम है आपका कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज. किसको करवा रहा है, कोलिन को लिंक करवा रहा है. तो कोलिन किसके साथ, एसिटाइल के साथ, ट्रांसफरेज, क्योंकि ये ट्रांसफर करवा रहा है, राइट. तो हम बोल सकते हैं कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज इज द एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कोलाइन,
राइट। तो यहाँ जैसे ही बाइंडिंग होता है कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ कोलाइन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू एसिटाइल कोलाइन। अब क्या होगा, अब एसिटाइल कोलाइन का फॉर्मेशन हो गया है, आप देख सकते हो दिस इज एसिटाइल कोलाइन, इट हैज बीन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज व्हिच हेल्प्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद कोलिन, राइट। The ACH is packaged into synaptic vesicles। तो आपका एसिटाइल कोलाइन होता है, एक बार फॉर्म होने के बाद वो सिनेप्टिक वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं। एसिटाइल कोलाइन इज रिलीज्ड इनटू सिनेप्स, और ये रिलीज कैसे होता है, ये रिलीज्ड हो जाते हैं सिनेप्स के फॉर्म में, राइट। ACH binds to its receptor on the postsynaptic cell। ACH क्या करते हैं, आपका जो रिसेप्टर होता है इसके साथ बाइंड कर, जैसे ही ये रिलीज्ड होते हैं इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्टसिनेप्टिक सेल। दूसरे न्यूरॉन के सरफेस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसी रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं क्या, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। जैसे ही आपका एसिटाइल कोलाइन रिलीज्ड होते हैं वो आपके किसके साथ बाइंड करता है, ये उस रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। Acetylcholine esterase breaks down the acetylcholine into choline and acetyl, terminating the signal in the postsynaptic cell। Okay, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक एंजाइम आते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलाइन एस्टरेजेस। ये क्या करता है, ये एसिटाइलकोलाइन को ब्रेक करते हैं, किसमें, एसिटाइलकोलाइन को ब्रेक करते हैं किसमें, कोलाइन और एसिटेट में। देखिए एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज क्या किया, एसिटाइल कोलिन को इन्होंने ब्रेक कर दिया कोलिन और एसिटेट में, राइट। The presynaptic cell takes up and recycles the choline and the acetate diffuses out of the synapse। अब ये जो कोलिन है ब्रेक करने के बाद ये कोलिन सीधा इनसाइड चले जाते हैं प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब पहला न्यूरॉन के अंदर चला जाता है कोलाइन, और जो आपका एसिटेट होता है, वो क्या करता है, वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चले जाते हैं, राइट। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो ये हो गया, ये पहला वाला न्यूरॉन का पार्ट है, तो हम इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसको बोलते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि दो न्यूरॉन के बीच का जगह है, राइट। और ये सेकेंड वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल। अब होता क्या है, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्री सिनेप्टिक सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस होता है। जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसी टाइम में एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस। वो क्या करते हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन को लिंक करवाते हैं, लिंक करवा के उसको बदल देते हैं एसिटाइल कोलिन में, राइट। अब एसिटाइल कोलिन क्या करते हैं, ये वेसिकल्स के फॉर्म में पैक्ड हो जाते हैं, और पैक्ड होने के बाद इसका रिलीज होता है इसका रिलीज कहाँ होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, राइट। जैसे ही एसिटाइल कोलाइन रिलीज हो जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो बाइंड करता है रिसेप्टर से। कौन सा रिसेप्टर से ये बाइंड करता है, ये बाइंड करता है पोस्ट सिनेप्टिक सेल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोलाइन के लिए होते हैं, और वो जाके क्या करते हैं, एसिटाइल कोलाइन इट विल गो एंड बाइंड टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, राइट। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स से, उसी टाइम में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज, ACHE, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। वो क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को ब्रेक कर देते हैं कोलिन और एसिटेट में, राइट। कोलिन जो होता है वो पहले वाले न्यूरॉन के अंदर चला जाता है, जो एसिटेट होता है वो डिफ्यूज्ड आउट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कीप्स ऑन रिसाइक्लिंग। Clear everyone how it is working acetylcholine, right? Great. So let's move to the next. तो अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारे होते हैं, उनके नेचर्स पहले हम देखेंगे। अगर हम अमाइनो एसिड्स न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स आपके न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जैसे हो गया आपका ग्लूटामेट, अस्पार्टेट, ग्लाइसिन,
गाबा, ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपके काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। इसमें से जो ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामिन, ये है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। एस्पार्टेट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। नेक्स्ट मोनोअमाइंस। अगर हम मोनोअमाइंस को डिवाइड करते हैं तो ये आते हैं कैटेकोलामाइंस एंड इंडोलामाइंस में। कैटेकोलामाइंस कौन कौन से होते हैं आपका? DEN, दैट इज डोपामाइन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, राइट। तो कैटेकोलामाइंस कौन कौन से होते हैं? डोपामाइन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। और अगर हम इंडोलामाइंस की बात करते हैं तो इसमें कौन आता है? सेरोटोनिन, राइट, जो कि एक्साइटेटरी होता है। गैसेस भी कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ गैसेस हैं जो कि काम करते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। एसिटाइल कोलाइन तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर ही है, जो कि आपके क्या होता है? बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी होता है। अभी हम देखेंगे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो कि एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एसिटाइल कोलाइन ये एक्साइटेटरी भी है प्लस ये आपका इनहिबिटरी भी है। क्लियर? तो ये क्या है? एसिटाइल कोलाइन बोथ है, ये एक्साइटेटरी भी काम करता है और कभी कभी ये आपका इनहिबिटरी भी काम करता है, राइट। तो हम इसको बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी में रखेंगे। नॉरएपिनेफ्रिन एक्साइटेटरी, एपिनेफ्रिन एक्साइटेटरी, डोपामाइन एक्साइटेटरी, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी। सॉरी, मैंने उस टाइम में बोला था ग्लूटामेट इनहिबिटरी, नो, इट इज एक्साइटेटरी, राइट। उसको प्लीज आप करेक्ट कर लेना यहाँ पे, जब हालांकि यहाँ पे मेंशन है ग्लूटामेट इज योर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, हिस्टामाइन विल बी एक्टिंग एज बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, राइट। नेक्स्ट गाबा एंड ग्लाइसिन। अगर आप देखोगे तो गाबा जो है दिस इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लाइसिन is also inhibitory neurotransmitter and nitric oxide is also inhibitory neurotransmitter, right? So inhibitory neurotransmitters कौन कौन से हैं आपके? GABA, glycine, nitric oxide, histamine, acetylcholine. Acetylcholine and histamine work both as excitatory and inhibitory, right? So ये हो गया आपका कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स अकॉर्डिंग टू देयर यू कैन से फंक्शन, कैसे ये काम करता है। Next, very important and always my favorite, human brain, very important, right? Human brain को अगर हम देखते हैं तो इसके बहुत सारे लोब्स होते हैं। तो पहला वाला अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये पिंक वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्या? फ्रंटल लोब। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रंटल लोब। तो इसका फंक्शन क्या है आपका? जब भी आप कुछ सोचते हो, आपका बिहेवियर कैसे रहता है, या फिर आपका मेमोरी कैसे काम करता है, आज ये था, आज ये करना था, मैं भूल गया, मैं भूल गई, राइट। तो ये सब जो पार्ट्स होते हैं, ये सब जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? ये करता है आपका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या कहाँ में हेल्प करता है? देखो, थिंकिंग में हेल्प करता है, राइट, मेमोरी में हेल्प करता है, बिहेवियर एंड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब के जस्ट नेक्स्ट इज योर पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का मेन फंक्शन है, ये लैंग्वेज एंड टच से रिलेटेड होता है। ये जो भी आप बोलते हो, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ द पैराइटल लोब, राइट। नेक्स्ट इज योर टेम्पोरल लोब। दिस इज अ पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, एंड जो टेम्पोरल लोब होता है वो आपके एसोसिएट होता है सुनने से। आप हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग्स, आप सुन रहे हो कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, राइट। सो दैट इज हियरिंग, कैसे कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसे आप सीख रहे हो चीजों को, राइट। दैट इज लर्निंग एंड फीलिंग, आपको कैसा फील हो रहा है, ये जो सारा चीज है दैट इज कंट्रोल बाय योर टेम्पोरल लोब, राइट। ऑसिपिटल लोब भी एक है जो कि आपके आई साइट्स को कंट्रोल करते हैं, साइट रिलेटेड टू योर आईज,
राइट। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टेम। यहाँ से एक थोड़ा सा ब्रेन स्टेम हमें दिखता है जो कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। ये बॉडी के टेम्परेचर, ब्रीदिंग, हार्ट रेट को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका क्या मेंटेन करता है? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे बॉडी को बैलेंस रखा जाए या कैसे बॉडी को कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन किया जाए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड, that is mainly done by your cerebellum, right? तो अगर आप ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे लोब्स होते हैं। जैसे आपके हो गया फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, राइट। जो आपका पहला वाला मैंने बात किया है वो है फ्रंटल लोब। वो आपके किसके साथ रिलेटेड होते हैं? फ्रंटल लोब, इट इज एसोसिएटेड विद थिंकिंग, मेमोरी एंड बिहेवियर। कैसे आप बात करते हो, राइट। नेक्स्ट पैराइटल लोब। पैराइटल लोब आपका रिलेट्स होता है किसके साथ? पैराइटल लोब इज रिलेटेड टू योर स्पीकिंग, लैंग्वेज एबिलिटी, राइट। थर्ड is your temporal lobe, which is related to your hearing, to your learning and to your feelings. Next is your occipital lobe. Occipital lobe is related to the eyesight, how it will work. Next, brainstem. Brainstem is basically brainstem helps in maintaining the breathing and heart rate and temperature. Next, cerebellum. Cerebellum balance helps in balance and coordination. ये पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखता है, राइट। और जब भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो आप देखना उसके बॉडी का बैलेंस नहीं रहता है, राइट। तो अल्कोहल कंजम्पशन के थ्रू कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? अल्कोहल कंजम्पशन से सेरिबेलम पार्ट का इफेक्ट होता है, क्योंकि इंसान अपना बैलेंस नहीं कर पाता है, इंसान बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पाता है, तो इससे इफेक्ट होते हैं आपके सेरिबेलम के पार्ट को, राइट। ओके, so this is along with the function. Again, I have given the chart to explain it with the help of the functions, right? So if we see this, this is a frontal lobe. ये हो गया आपका frontal lobe जो कि आपके help करते हैं किसमें? Personality, social skills, judgment, emotion regulation, movement, speech, reasoning, executive functions. ये हो गया आपके frontal lobe का काम. Coming to parietal lobe. Parietal lobe leads with a receive sensory input, language processing. आप बात कर रहे हो, राइट। जो आपका प्रोसेस, अगर बात करने के लिए भी कुछ प्रोसेसिंग्स होती है लैंग्वेज की, वो सब देखते हैं parietal lobe. डेप्थ परसेप्शन, स्पेशल अटेंशन, राइटिंग, रीडिंग, कैलकुलेशन, जो भी चीज कैलकुलेशन हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, वो सब आपके कौन मेंटेन करता है? दैट इज मेंटेन बाय योर parietal lobe. Next, temporal lobe. Temporal lobe is related to memory, object recognition, understanding language, combined senses with memory, art, music, speech, hearing. So temporal lobe is related with your memory, senses, recognition, speech, hearing. तो यहाँ पे आपका था this is thalamus. Thalamus is related to your consciousness, alertness, sleep. बॉडी का जो आपके सर्कैडियन रिदम है वो मेंटेन करता है आपका थैलेमस, राइट। ये करता है स्लीप, डेप्थ परसेप्शन, स्पेशल अटेंशन, ये सब देखता है। बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का क्या फंक्शन है? मेमोरी, इमोशन, कोऑर्डिनेशन और मसल मूवमेंट। ये हो गया आपका बेसल गैंग्लिया। अगर हम ऑसिपिटल लोब के बारे में बात करते हैं, दिस हेल्प्स इन साइट प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। जो भी आप देखते हो आप रिकॉग्नाइज करते हो कि यस दिस इज दिस पार्ट, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये सब कैसे प्रोसेसिंग होता है? दिस इज डन बाय योर ऑसिपिटल लोब, राइट। नेक्स्ट सेरिबेलम जो कि आपका बैलेंस, लर्निंग, इमोशंस, कोऑर्डिनेट, अटेंशन सब मेंटेन करके रखता है। ब्रेनस्टेम इज मेनली फॉर मेंटेनिंग द ब्रीदिंग, हार्ट रेट, टेम्परेचर, ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, अलर्टनेस, ये सबको मेंटेन करके रखता है। सो ये हो गया आपका फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लोब्स। नेक्स्ट वी विल सी द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम एक पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो कि आपका पोर्शन है फ्रंटल लोब का, पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, बेसिक बेसल न्यूक्लियाई, अदर ड्यूब न्यूक्लियाई एसोसिएटेड विद सेंस ऑफ स्मेल। अगर हम लिम्बिक पार्ट को देखते हैं, इसी पार्ट को हम बोलते हैं क्या? लिम्बिक पार्ट, राइट।
तो इसका फंक्शन क्या है, ये इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है, ये कंट्रोल्स, लिम्बिक क्या करता है, कंट्रोल्स इमोशंस को ये कंट्रोल करता है, और आपके ये क्या करते हैं, प्लस प्रोड्यूसेस फीलिंग्स, और फीलिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? सो जो ब्रेन का लिम्बिक पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इमोशंस को, और साथ ही साथ में फीलिंग्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, इंटरप्रेट सेंसरी इंपल्स को भी ये इंटरप्रेट करता है। राइट, ये हो गया आपका लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट, ये कुछ पार्ट्स हैं ब्रेन्स के, ब्रोकास एरिया, वर्निकस एरिया। जो ब्रोकास एरिया होते हैं वो बेसिकली कैसे काम करता है, ये हो गया ब्रोकास एरिया, ये हो गया आपका वर्निकस एरिया। राइट, ब्रोकास एरिया रिसीव इम्पल्स फ्रॉम वर्निकस एरिया एंड कन्वर्ट इट इनटू मोटर कमांड। ब्रोकास एरिया हमेशा तब काम करते हैं जब उसके पास सिग्नल आता है, किसके थ्रू सिग्नल आता है, सिग्नल आता है आपका वर्निकस एरिया के थ्रू। राइट, और जैसे ही सिग्नल आता है वो सिग्नल को ये कन्वर्ट करता है आपका मोटर कमांड में। अगर ब्रोकास एरिया का डैमेज होता है, कोई भी एक्सीडेंट केस हो कुछ भी, तो इससे क्या होगा, डिस्टर्ब स्पीकिंग के एबिलिटी में डिस्ट्रप्शंस होंगे। राइट, तो हमें क्या ध्यान देखना है, डैमेज अगर ब्रोकास एरिया में हुआ, इट विल इफेक्ट द स्पीकिंग एबिलिटी। राइट, पर्सन कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, वर्ड्स मे नॉट बी प्रॉपरली फॉर्म्ड, उनको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जो होगा वो प्रॉपरली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वर्ड्स का लिमिटेशन होता है, वर्ड्स उनका ओपन नहीं होता है। Speech is slow and slurred. Patients may get frustrated because they know that something is wrong. Wernicke's area क्या है? The area in our brain that allows understanding of spoken and written language. अभी मैं आपको कुछ समझा रही हूँ। आपका जो ब्रेन है वो उस चीजों को ले रहा है, जो भी मैं बोल रही हूँ, आपका जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है, उस चीज को ग्रैब कर रहे हैं। राइट, ग्रैब करके आप उस चीज को समझ रहे हो। तो जो ये जो फंक्शन करवाते हैं, ग्रैब करना, समझना चीजों को, उसको वो कौन करता है, वो करता है आपका वर्निकस एरिया। राइट, और इट इज द पार्ट दैट एनेबल्स अ पर्सन टू इंटरप्रेट लैंग्वेज। ये वो पार्ट है ब्रेन का जो क्या करते हैं, लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन से डीलिंग करते हैं। So damage to this part causes the person to become unaware of his own speech and the speech of others. अगर वर्निकस एरिया में कुछ डैमेज होता है तो पर्सन का कंट्रोल नहीं होता है स्पीच में। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बातें कर रहे हो तो यू आर अंडर कंट्रोल, आप एक कंट्रोल के साथ बात करते हो। राइट, लेकिन अगर आपके वर्निकस एरिया इफेक्ट होते हैं तो वो कंट्रोल नहीं रहता है। कंट्रोल इज लाइक देयर इज नो कंट्रोल ऑन द स्पीच। Sometimes the person can speak clearly, but the words that are put together make no sense. ये क्या करेंगे, ये पर्सन कैन स्पीक, वो बात कर सकते हैं, लेकिन जो वर्क होगा उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या देखा, जो वर्निकस एरिया होते हैं बेसिकली वो प्रोसेसिंग करता है या फिर लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। वर्निकस एरिया आपका सिग्नल देता है ब्रोकास एरिया को, और ब्रोकास एरिया आपके स्पीकिंग को डीलिंग करते हैं। अगर किसी भी केस में ब्रोकास एरिया इफेक्टेड हुआ तो पर्सन क्या करेंगे, बोल नहीं पाएंगे ढंग से, उनको सामने वाले का तो समझ में आएगा लेकिन खुद वो नहीं बोल पाएंगे। राइट, सो ये होता है आपका ब्रोकास एंड वर्निकस एरिया का कॉन्सेप्ट। राइट, नेक्स्ट, cranial nerves. This is cranial nerves. Let me draw here. क्या है ये cranial nerves? अगर हम बात करते हैं cranial nerves का, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है, ओके, अब अगर ध्यान से देखोगे cranial nerves, तो cranial nerves बेसिकली इट इज 12। कितने होते हैं cranial nerves? ये 12 नंबर्स का होता है। जो सबसे पहला वाला पार्ट है ये हो गया क्या आपका, ओल्फैक्टरी। सबसे पहला वाला क्या है, ओल्फैक्टरी, जो कि ये किसको सेंस करता है, नोज। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल, स्मेल कहाँ से होता है, आपके नोज से होता है। सो दिस इज रिलेटेड विद द नोज। राइट, जो आपके सेकेंड नर्व होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक। ऑप्टिक हमेशा, ऑप्टिक, ऑप्थेल्मिक, ये सब रिलेटेड होता है आंखों से। राइट, सो ऑप्टिक विल बी रिलेटेड टू योर आईज। राइट,
नेक्स्ट थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूमुलेटर। ऑक्यूलोमोटर मोटर का क्या फंक्शन होता है? ऑल आई मसल्स एक्सेप्ट दो सप्लाइड बाय फोरेंसिक्स, ये भी आपके आई से ही रिलेटेड होता है ऑक्यूलोमोटर, राइट। नेक्स्ट जो फोर्थ वाला पार्ट है ट्रोक्लियर का क्या फंक्शन है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स के साथ ये डीलिंग करते हैं। तो हमने अभी कितने क्रेनियल नर्व्स देखे हैं? 4 टाइप्स का। कौन कौन सा? ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रैक्लियर, राइट। ट्रिपल OT देखा है। नेक्स्ट ये तो फोर्थ हो गया ट्रोक्लियर, जो कि आपके ऑब्लिक मसल्स के साथ डीलिंग करते हैं। नेक्स्ट ट्राइजेमिनल का क्या फंक्शन है? ट्राइजेमिनल सेंस करते हैं फेस, साइनसेस, टीथ एटसेट्रा, ये डीलिंग करते हैं आपके फेसेस, टीथ, ये सब में भी नर्व का कनेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व 5, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल, राइट। नेक्स्ट आता है सिक्स को हम बोलते हैं एब्ड्यूसेंट बोलते हैं, जिसका काम क्या है? एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स के साथ डीलिंग करना, ये डील करते हैं आपके एक्सटर्नल मसल्स के साथ। सेवेंथ है आपका वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, ये इनर ईयर के साथ डीलिंग करता है। कॉक्लियर से ही पता चलता है कि ये इनर ईयर से ही डीलिंग करता है, क्योंकि कॉक्लियर इज द पार्ट विच इज रिलेटेड टू द ईयर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 8 हो गया। नेक्स्ट आता है ग्लॉसोफेरेंजियल। ये रिलेटेड होता है आपका फेरिंग्स, टंग, राइट, फेरिंग्स, टंग मसल्स के साथ ये रिलेटेड होता है। अगर हम 10th की बात करते हैं, 10th वाला कौन सा नर्व है? ये है वेगस नर्व। इसका फंक्शन क्या है 10th वाले का? ये हार्ट, लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इन सब चीजों को देखते हैं, राइट। 11th वाला है एसेसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? स्टर्नोकोक्लियोस्टोमॉइड एंड ट्रेस्पेजियस मसल्स, ये भी कुछ कनेक्शंस है। देखिए यहाँ पे स्टर्नोकोक्लियोमेस्टोइड, ये क्या है? स्टर्नोकोक्लियोमेस्टोइड ये एक बॉडी पार्ट है जो कि आपका इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका हाइपोग्लोसल, जो कि आपके 12th क्रेनियल नर्व है। ये क्या काम करते हैं? मसल्स ऑफ द टंग, ये फेशियल मसल्स ऑफ द टंग, इन सब से ये रिलेटेड होता है। ये हो गया 12th क्रेनियल नर्व्स। मैंने यहाँ पे एक आपका ये भी रखा है, क्रेनियल नर्व्स को याद करने के लिए न्यूमोनिक्स रखा है। पहला वाला हमने देखा था ओल्फैक्टरी होता है, सेकेंड वाला होता है ऑप्टिक, थर्ड वाला होता है ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ वाला होता है ट्रोक्लियर, फिफ्थ वाला होता है ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ वाले होते हैं एब्ड्यूसेंस, सेवेंथ वाले होते हैं फेशियल, एथ वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसियल। तो इसका जो कोड है ओल OP, ओल स्टैंड्स फॉर ओल्फैक्टरी। देखिए पहला दो लेटर सेम है, ओल स्टैंड्स फॉर ओल्फैक्टरी, OP स्टैंड्स फॉर ऑप्टिक, ओकेशनली स्टैंड्स फॉर ऑक्यूलोमोटर, राइट। ओकेशनली जो है ये स्टैंड्स फॉर ऑक्यूलोमोटर। नेक्स्ट TR stands for trochlear, TR. Trigonometry, all OP occasionally tries trigonometry, that is trigeminal. See, first three letters are similar, trigeminal, right? And stands for abducens, N stands for abducens. Feels very gloomy, feels, F stands for feeling, F stands for facial, right? V stands for vestibulocochlear and feels very gloomy, vestibular, cochlear and glossopharyngeal. VEG stand for vagus nerve and accessory hypoactive hypoglossal. So हमने क्या देखा? Old OP occasionally tries trigonometry and feels very gloomy, vague and hypoactive, तो क्या क्या है? ओल्ड से हो गया हमारे ओल्फैक्टरी, जो कि आपका पहला नर्व है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ओपी ओल्ड, ओपी ओकेशनली
occasionally का spelling गलत है. Let me do this. Old OP occasionally tries trigonometry and feels very gloomy vague and okay, let me do it in another slide so that it becomes clear for you. Okay, but I will be doing it in another slide. Right? Clear till here? We will see this. Olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal. First वाला होता है abducens, next वाला होता है accessory. We will see in the next slide, right? Okay, great. So these are the nerves. You can see here, old OP. This is the code. Your old OP occasionally tries trigonometry and feels very gloomy, vague and hypoactive. OL stands for olfactory, OP stands for optic, occasionally stands for oculomotor, tries stands for trochlear, trigonometry stands for trigeminal, N stands for abducens, Phil stands for facial, V stands for vestibulocochlear, gloomy stands for glossopharyngeal, vague stands for vagus, and accessory and hypoactive for hypoglossal. So in this way you can remember the 12 types of cranial nerves. This is very important, right? So these are the cranial nerves. Next class we will be dealing with another topic of human physiology. You can subscribe to our channel, that is let's crack CSIR UGC net. If you are really preparing for CSIR net, you can join our Telegram channel as well. You can also subscribe to our YouTube channel, hit the bell icon to get notification on new lectures. And if you have any queries on subscription, you can download the Unacademy app. You can search my profile Devashri. You can message me if you have any queries. And that's all for today's class. Next class we'll be dealing with another interesting topic of human physiology. Thank you so much, students. Bye bye. Take care, everyone.